हेलो एवरीवन, मैं प्रभुल शर्मा, साइंस एक्सपर्ट गेटवे स्कूल आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर। आज हम लोग जो हमने आपको पीडीएफ फाइल दी थी उसके अंदर जितने भी हमने क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे करने के लिए, आशा करता हूं आप लोगों ने वो करे होंगे। अब उनके आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, किस तरीके से आपको उनको पेपर के अंदर अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपको उनको आंसर देना है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, प्रिडिक्ट केमिकल एंड द फिजिकल चेंज फ्रॉम द पिक्चर। सो आप लोगों के पास इस तरीके से एक पिक्चर दी गई थी। इस पिक्चर में आपको बताना था कि केमिकल एंड फिजिकल चेंज कौन सा है। अगर आप लोगों ने अब तक इन क्वेश्चंस को नहीं किया है तो फटाफट आप कमेंट सेक्शन के अंदर इन चीज़ों का रिप्लाई कर सकते हैं और उनके बेसिस पे हम आज का जो लेक्चर होगा उसके बाद में उसमें हम स्टार परफॉर्मर का नाम भी आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये क्या हो जाएगा? एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। freezing physical change, spoiling is a chemical change, this is removing of a grass, क्या हो जाएगा आपके पास? ये भी एक physical change हो जाएगा, this is a physical change. Then slicing of bread, physical change. Marshmallow, physical change. Breaking of egg, it's a physical change. Exploding fireworks, it's a chemical change. Mixing cool aid, अब ये cool aid पैकेट्स क्या होता है? जैसे रसना है और आप टैंग है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये cool aid पैकेट्स होते हैं। ये क्या हो गया आपके पास? दिस इज ऑल्सो a physical change. Squeezing an orange for a juice, again it's a physical change. Evaporating water, it's a physical change. Burning a toast, it's a chemical change. Burning a wood, chemical change. Popping of popcorn is a chemical change. Bleaching or hair coloring is a physical change. Melting of chocolate is a physical change. So इस तरीके से आप लोगों का ये आंसर होगा, आपको इस तरीके से देना होगा। Then second question आपका आता है, which change is the temporary? We all know that physical change is a temporary change. Second question or third question is, which change produce a new substance? We all know that chemical change produce a new substance. Fourth question, give examples of changes in which there is both chemical as well as physical change. So I am giving you here example, that is burning of candle. You can write another example in your comment section. I am waiting for your answer. So, fifth question, when ice is heated, it changes to water and water on further heating gets converted into steam. What happens when steam is condensed? अब जब steam दोबारा condense होगी तो क्या होगा? Now बच्चों, ये जो हमें पार्ट दिया गया क्वेश्चन में, this is just to confuse us. ये एक तरीके से आपको जो थ्योरी बताई गई है। The main question starts from here. What happens when steam is condensed? अब आपको पता है कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है? गैसेस स्टेट कन्वर्ट्स बैक इनटू लिक्विड, लिक्विड स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, इस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो, वाटर तो वाटर ही रहती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता हम लोगों के पास में। बी ऑप्शन क्या है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया आपके पास। सी ऑप्शन क्या बोलता है? गैसियस फेज चेंजेस टू लिक्विड फेज, ये भी करेक्ट बात है। सो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। सो वी विल से दैट ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। So next we have balance the following equation. Now balancing the following equation, the first we have Al2SO4 plus NaOH reacts with, aluminum sulfate and NaOH reacts with each other and forms aluminum hydroxide with Na2SO4 and water. Second equation, nitric acid reacts with calcium hydroxide, gives you calcium nitrate and water. Third equation is NaOH plus H2SO4 gives you Na2SO4 and H2O. Fourth equation is BaCl2 plus H2SO4 gives you BaSO4 and HCl. So these are the four equations. Here are your answers. You can just check it and tell me whether you have solved correct or not in the comment section. Now, my question, listen carefully. 1 to 4. What are the types of these reactions? In the last lecture, we studied about the types of chemical reactions. Just write down in the comment section what are the different types of chemical reactions these are. 1, 2, 3, 4. Are they same? Are they different? Now, question is, write down the
types of chemical reaction for the following. Okay, now fifth part we have sodium hydroxide dash reacts with dash and forms Na2SO4 plus H2O. Now this is a type 2 question. In this question you have to give me one of the reactant. देखो now अब इसको किस तरीके से करेंगे हम लोग. सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास और प्रोडक्ट में क्या बनता है हमारे पास Na2SO4 सल्फेट. So the best thing what we can add is H2SO4. So reaction will be sodium hydroxide plus H2SO4 gives you Na2SO4 plus H2O. Now फटाफट just balance this equation and write down in the comment section क्या होगा. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. 2 and you will add this 2. So this is the balanced chemical equation number 5. Now similarly, calcium hydroxide CaOH whole twice reacts with something. You have to tell this particular something. This is a question mark. It gives calcium carbonate CaCO3 plus H2O. Now what will be the answer there? Write down in the comment section. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, your answer is CO2. Very good. If you do this thing, it's a good thing. If you are not able to do, not an issue, bacho. We will try. We are doing these things together. So, carbon dioxide, when reacts with calcium hydroxide, it gives you calcium carbonate, that is CaCO3, plus water. And this equation is already balanced. Okay. Now moving towards these 7, 8, 9, 10 and 11 equations. So first of all, quickly we will see the seventh one. Sodium plus oxygen gives you sodium oxide. अब इसके अंदर क्या होगा? We have two oxygen. यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑक्सीजन है. मैंने क्या करा? यहाँ पे 2 लगा दिया. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. सोडियम कितना हो गया? 4. So I will put 4 there. Okay, this is balanced now. Now equation number 2, H2O2, that is hydrogen peroxide, reacts with water, that is H2O, and gives you, sorry, H2O2. In this reaction, H2O2 break down and form water, H2O plus O2. अब ये किस तरीके से होगा आपके पास में? देखिए फटाफट, यहाँ पे लिखिए 2 और यहाँ पे लिख दीजिए 2. ये होगी रिएक्शन बैलेंस. चेक करते हैं हम लोग. 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 2 plus 2, 4 oxygen. Now in the ninth one we have magnesium hydroxide plus HCl gives you MgCl2 plus H2O. फटाफट बैलेंस करिए, आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. 1, 2, 3, 4, 5. आई होप आप लोगों ने आंसर दिया. तो इसमें आ गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अगेन 2. चेक करें फटाफट इसको. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, कैल्शियम यहाँ पे, क्लोरीन 2, 2 क्लोरीन हो गया यहाँ पे, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 plus 2, 4, 2 into 2, 4 hydrogen. This reaction is balanced now. Now Fe plus O2 gives you Fe2O3. फटाफट करो. 1, 2, 3, 4. Very good. Write down in the comment section. जल्दी से फटाफट आंसर लिखते रहिए आप लोग. इसमें आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ में कितना यहाँ पे 3 है. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3, 6 हो गया. फटाफट इसको लिखिए, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए मेरे को. अब देखिए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना है आपके पास? 3. तो इसमें क्या करता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 आ गया. तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? 4 Fe हो जाएगा. अब चेक करते हैं. Fe4, 4 Fe, 3 into 2, 6, 3 into 2, 6. बराबर हो गया हमारे पास. नाउ AlOH whole twice, aluminium hydroxide breaks down into aluminium oxide, that is Al2O3 plus H2O. फटाफट इसको करिए, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए मेरे को. 1, 2, 3, 4 एंड 5. आंसर आपके पास आएगा ट्वाइस Al3 एंड यहाँ पे 3H2O. चेक करते हैं हम लोग फटाफट. एल्यूमिनियम 2, 2 एल्यूमिनियम. अब ये बच्चों इसको आप इस तरीके से मान के चलो, ये 3 और 3 है, इसको हम हटा देते हैं. 3 2 जा 6. ये क्या मेरे पास 3 plus 3, 6 हो गया. ऑक्सीजन बैलेंस्ड है. 3 into 2, 6 हाइड्रोजन, 6 hydrogen, 3 into 2, 6 hydrogen. So in this way, all the equations are balanced now. Now moving forward, next question is, why is photosynthesis considered as endothermic reaction? Now endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. ABSORBED, heat is absorbed. So
in case of photosynthesis, we all know that. What is the definition of photosynthesis? Okay, just write down in the comment section. Photosynthesis means for food formation by the plants with the help of carbon dioxide and sunlight. यही चीज पढ़ी थी. Now sunlight is providing energy. Now energy is absorbed. So we can say that photosynthesis absorbs energy from sunlight. So this is an endothermic reaction. Question number 2. State two characteristics of chemical reaction which takes place when dilute sulfuric acid is poured over zinc granules. Now, what is the reaction? Sudden solid plus H2SO4 gives you H2 gas plus ZnSO4. Now, two characteristics कौन कौन सी होंगी? A क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास? Gas creation. Now gas is created and B will be change in temperature. ये रिएक्शन में क्या होगा? टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा. तो चेंज इन टेम्परेचर आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. मैं इसको फटाफट एक बार रब कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली इसको दिख जाए. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. चलो मैं इसको एक बार और फटाफट बता देता हूं. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट. क्या होगा यहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक बताना है हम लोगों को. कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैस. प्रोडक्शन ऑफ गैस हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है. सेकंड क्वेश्चन. लेमन जूस इज एडेड ग्रेजुअली टू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन. अब लेमन जूस को मैं पोटेशियम परमैंगनेट में डालता हूं तो क्या होता है? चेंज इन कलर. तो उसको बोलेंगे हम लोग कलर चेंज होगा. थर्ड वन. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड. प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन. बेरियम क्लोराइड के आपके पास में व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट बनेगा. व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन ऑफ barium chloride. This is important. Remember this thing. Now fourth is quicklime is treated with water. In this change in temperature, it produces a very huge amount of heat. So change in temperature will be your answer for this. चलिए moving towards the next MCQ. Now we have MCQ part. So MCQ are nowadays are the part of your CBSE and ICSE exams and also very helpful to give you an idea about your competitive exams, that is foundation program. हम लोग CBSE के साथ साथ फाउंडेशन के बारे में भी पढ़ रहे हैं. ओके चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. दिस इज. तो फर्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना है बच्चों हमें. तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? इन विच हीट इज एब्जॉर्ब. हीट को एब्जॉर्ब किया गया है. क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. हमें पता है कार्बन जब और ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसके साथ साथ हीट भी बाहर निकलती है. सो ये तो क्या हो गया मेरे पास बच्चों? एक्सोथर्मिक हो गया. कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. ये भी एक्सोथर्मिक होता है बच्चों. नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये क्या होगा? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये क्या है मेरे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो ये केस मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन का बनेगा. फोर्थ आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड HCl एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. अब जिंक क्लोराइड और आपने हाइड्रोजन क्लोराइड था आपके पास और जिंक, ये दोनों रिएक्शन कंबाइन होंगी तो क्या देखा था हम लोगों ने? चेंज इन टेम्परेचर. तो हीट इवॉल्व होती है. तो ये हमारे पास हीट इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पे. चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. नेम द फॉलोइंग. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब इनमें से बताओ फटाफट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद है ना आप लोगों को? इन विच हीट इज इवॉल्व्ड. हीट बाहर निकलती है. Okay, now first option is electrolysis of water. Second option we have conversion of limestone into quicklime. Yes, you are right. B will be your answer. हम लोग इस रिएक्शन को बहुत बार रीड कर चुके हैं. क्विकलाइम जब भी कभी जो है लाइमस्टोन जो है क्विकलाइम में कन्वर्ट होता है तो क्या नहीं, ये वो रिएक्शन नहीं है. याद रखिएगा क्विकलाइम से लाइमस्टोन में कन्वर्जन होना और लाइमस्टोन से क्विकलाइम कन्वर्जन दोनों गलत चीजें हैं, उल्टी चीजें हो जाती हैं ये. तो लाइमस्टोन मेरे पास क्या था बच्चों? CaCO3. अब CaCO3 को मैं हीट करता था तब ये क्विकलाइम में कन्वर्ट होता था, डेट इज CaO. तो ये रिएक्शन तो कैसी हो गई? इसमें हीट रिक्वायरमेंट होती है तो ये एंडोथर्मिक हो गया. देन मेरे पास आता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है बच्चों? हीट बाहर निकलती है.
जब भी हमारे इनसाइड रेस्पिरेशन करते हैं तो हीट बाहर निकलती है हमारी, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर सी विल बी द राइट आंसर। डी क्या है? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग को पता है, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड टू डू फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए, now we have higher order thinking skills and we call these questions as hot questions. Now first question is, when the solution of substance X, अब ये x y z में बच्चों हम खेलेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या कहता है ये, जब when a solution of substance X is added to a solution of potassium iodide, potassium iodide का हमने experiment भी किया था, that is Ki, then a yellow precipitate separates out from the solution. So कहता है X is reacting with Ki, X plus Ki gives you yellow PPT. तो बच्चों फटाफट बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं वेट कर रहा हूं। 1 2 3 4 एंड 5। चलो, हियर आर योर आंसर्स। सो व्हाट डू यू थिंक सब्सटेंस X इज लाइक टू बी? लेड नाइट्रेट हम लोगों ने पढ़ा था। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला मेरे साथ लिखेंगे यहाँ पे सारे बच्चे, PbNO3 होल ट्वाइस। देन बी ऑप्शन क्या है हमारे पास? नेम द सब्सटेंस विच द येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ। येलो सॉलिड इज कंसिस्ट ऑफ PbI2। थर्ड ऑप्शन है, विच करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय दिस एग्जांपल। अब इसमें क्या मिलता है, कौन सा करेक्टरिस्टिक है? PbI2 बच्चों क्या था? ये जो PbI2 बना था बच्चों, ये क्या था? ये प्रेसिपिटेट था। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर, इसके साथ आप लिख सकते हैं चेंज और कलर चेंज। दोनों ही चीजों में से आप कोई भी एक लिख देंगे तो दोनों ही ठीक पाएंगे, बट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज द मेन थिंग। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने करा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। ये तो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं और इसका मैंने आपको जो है पूरा का पूरा एक दिखाया भी था कि हाउ दीज रिएक्शंस आर परफॉर्म। सो फटाफट अगेन आई एम काउंटिंग, फटाफट रिएक्शन लिखिए कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 एंड 4। वेरी गुड। आई होप सब बच्चों को ये रिएक्शन लिखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा किसी वजह से तो जस्ट फटाफट आप देखिए। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, ये रिएक्ट होता है। अब ये क्या बनेगा बच्चों? PbI2 प्लस KNO3। अब एक बात बताओ, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज? इंटर एक्सचेंज ऑफ कैटायंस एंड एनायन। सो दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके साथ आप क्वेश्चन नंबर ई भी ऐड कर दो, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज। नाउ ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा है बैलेंस्ड करना, तो आप लोगों को इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करा आपने, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आई वांट योर आंसर। चलिए फटाफट हम लोग अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, when a metal X is treated with a dilute acid Y, then a gas Z is evolved। अब बच्चों ये एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन जरूर परेशान करते हैं, बट डरना नहीं है हमें इनसे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है उसी पे बेस्ड हैं। When a metal X is treated with dilute acid Y, then gas Z is evolved। अब एक गैस Z इवॉल्व हो रही है, तो बच्चों याद रखना हमेशा, एसिड क्या हो सकता है मेरे पास? या तो मेरे पास H2SO4 हो सकता है या मेरे पास HCl होगा। इन दोनों में से कोई भी एसिड लूंगा और मेरे पास मेटल के साथ, मेटल X के साथ में अगर इनमें से कोई भी रिएक्ट करता है तो मेरे पास Z गैस इवॉल्व होती है। और याद रखिए H2SO4 और HCl से कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, चलो फटाफट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी टू मेटल्स विच कैन बिहेव लाइक अ मेटल एक्स। तो मेटल एक्स क्या हो सकता है आपके पास? जिंक भी हो सकता है बच्चों, आयरन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कॉपर नहीं लिखना आप इसके अंदर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीन एलिमेंट आप लोगों को नहीं लिखने हैं बच्चों, क्योंकि दीज एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन एसिड। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देगा आपको। चलिए बी पार्ट देखते हैं, नेम एनी टू एसिड्स विच कैन बिहेव लाइक वाई, विच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई। अब एसिड वाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दिस कैन बी सल्फ्यूरिक एसिड और दिस कैन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम द गैस जेड, जेड गैस क्या है आपके पास? हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है, इज द गैस जेड
लाइटर और हैवियर देन एयर, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर बच्चों। देन हमारे पास है पार्ट ई, is the reaction between metal X and dilute acid Y is exothermic or endothermic reaction? We all know that heat is evolved in this reaction. So this reaction is exothermic in nature. Here are your answers. So exothermic is the answer. Lighter than air, hydrogen, dilute sulfuric acid, HCl, iron and zinc. These all are your answers for this question. Now the last question for homework. I gave you the homework ना. चलो फटाफट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं. And this question is from your NCERT. ये एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है बच्चों, उस पैराग्राफ के बेसिस पे पूछा जाता है पेपर के अंदर. अब फटाफट हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए. When water is added gradually to a solid X, थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा. व्हाइट सॉलिड X है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या डाला, वाटर ऐड कर दिया. नाउ व्हेन द वाटर इज एडेड, अ हिसिंग साउंड. हिसिंग साउंड क्या होती है, फुसफुस, इस टाइप की एक साउंड उसके अंदर से बाहर निकलती है. जब ऐसी एक साउंड बाहर निकलती है, उसके साथ साथ a lot of heat is produced forming a product Y. अब हीट प्रोड्यूस हो रही है बच्चों इसके साथ, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और एक ये प्रोडक्ट बनाता है Y. तो इसकी एक रफ इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, X प्लस वाटर दैट इज H2O gives you Y, ओके, विद हीट. तो हमने एक क्या करा, एक जनरल इक्वेशन बना लिया सो दैट कि हमें बार बार वो थ्योरी ना पढ़ना पड़े, हम लोग इक्वेशन से अपना काम चला लें. चलिए आगे बढ़ते हैं. ए सस्पेंशन ऑफ वाई इन वाटर इज अप्लाइड ऑन द वॉल. अब बच्चों फटाफट बताओ, घर में जब हम लोग पुताई करवाते हैं, सफेदी जिसे बोलते हैं, तो उसमें क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अप्लाई करते हैं ना, याद आया. तो ये वही सस्पेंशन के बारे में बात करी गई है. चलिए, white washing, during the white washing, a clear solution Y is also used for testing carbon dioxide gas in the laboratory. और इस Y solution को हम लोग CO2 को टेस्ट करने के लिए भी यूज करते हैं. तो फटाफट मेरे को बताइए क्या क्या इसके आंसर होंगे. पहला आता है, जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखियो, लिखिए फटाफट, 1 2 3 4 and 5. So what could be the solid X and write its chemical formula. सॉलिड एक्स क्या होगा बच्चों आपके पास यहाँ पे, सॉलिड एक्स इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट वाई, वाई मेरे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस. ऑप्शन सी क्या है मेरे पास, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सॉल्यूशन वाई, वाई का कॉमन नेम क्या है, विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है इसका, लाइम वाटर. लाइम वाटर. बेटा लाइम वाटर का मतलब यहाँ पे नींबू पानी नहीं है, इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन. ओके, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहता है. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन एडिंग वाटर टू सॉलिड एक्स. ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया यहाँ पे, दैट इज एक्स की जगह पे आप CaCO3 प्लस वाटर गिव्स यू CaOH होल ट्वाइस एंड lot amount of heat. Which characteristic of chemical reaction is illustrated by this example? In this example, what you are observing? Change in temperature. Change in temperature आपको बनेगा and a suspension is created. Suspension is created. तो बच्चों ये थे अब तक के हम लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर जो आप लोगों को एज अ फॉर्म ऑफ PDF मिले. जस्ट आप इस वीडियो को, आपके पास ये वीडियो अभी थोड़ी देर तक रहेगी, थोड़ी देर तक का मतलब ये अभी आपके पास 1-2 दिन तक रहेगा. अगर कोई भी आपको इसके अंदर डाउट आता है, आप दोबारा इस वीडियो को प्ले कीजिए, पॉज कीजिए और अगेन अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके बाद में अभी दोबारा से 10 मिनट के अंदर दोबारा से हम लोग आएंगे और आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट और पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे. मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा और उसके साथ साथ अमित सर भी आएंगे और वो आप बच्चों को इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे स्टार परफॉर्मर अनाउंस करेंगे आज. ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर. जस्ट 10 मिनट का ब्रेक लेके आते हैं, जल्दी से आप फ्रेशन अप हो जाइए विथ न्यू एनर्जी एंड न्यू जील. बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट बच्चों.